Hello students, welcome to the third part of our first chapter, Morphology of Flowering Plants. Okay, so अपने previous class में what we have studied about root modification. In this class, we are going to learn stem modification. Okay, ये question भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला question है. Okay, so explain how stem is modified variously to perform different functions. So stem अपने आप को कैसे modify करता different functions perform करने के लिए. Okay, so first one, what is stem? Okay, stem actual में है क्या? The aerial part of the flowering plant is called stem. Okay, जो plant में aerial part रहता, okay, aerial part जो plant में रहता उसको हम बोलेंगे stem. Okay, stem modification. Uh, So, stem modification, a permanent structural change in the stem to perform some special functions suitable to the environment is called stem modification. So, it is a permanent change, okay, not a temporary change. It is a permanent structural change in the stem, okay. जब stem, okay, stem modification. So, what is stem modification? A permanent structural change, okay. It is a permanent structural change in the stem to perform some special functions suitable to the environment is called stem modification. Okay, particular environments में stem अपने आप को modify करता, permanently अपने आप को क्या करता, modify करता to perform special functions, थोड़े special functions perform करने के लिए अपने आप को change करता. Okay, so it is called stem modification. So stem modification is are of three types. Okay, first one is underground stem modification, aerial stem modification, subaerial stem modification. Okay. Okay. First one is underground stem modification. In some plants, the stems grow into the soil. They can withstand unfavorable conditions and become perennial plant. They perform vegetative propagation. They store food material. Okay. कुछ प्लांट्स में स्टेम क्या होता, सॉइल के अंदर ग्रो होता. ओके, एंड बिकम पेरिनियल प्लांट. ओके, जो प्लांट है उसका स्मॉल पार्ट बन जाता. ओके, और क्या करता, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन परफॉर्म करता. ओके, दे स्टोर्ड फूड मटेरियल जैसे कि पोटैटो. ओके, एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, potato it is a stem, not a root. Okay, as you can see in this picture, potato is not root, it is a stem. Okay, it stores food material inside. Okay, so example of underground stem is rhizome of ginger, bulb of onion, corn of colocasia, stem tuber of potato. And second part is aerial stem modification. Okay, this is of four types. Aerial stem modification में हमें four types मिलेंगे. First one is stem tendrils. Okay, stem tendril is nothing but a slender spirally coiled structure. Okay, as you can see in this picture, जो ऐसा round round होके coiled structure बना रहा उसको हम tendrils बोलते हैं. They help in climbing up. Okay, जो ये plant को climb करने में helpful रहता. Okay, axillary bud is modified into a tendril in cucumber and watermelon. So what is axillary bud? Axillary bud is nothing but stem और लीफ को अटैच करने के लिए जो नोड रहता, जो यहाँ पे नोड रहता उसको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं. सो एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल. ओके, ये जो एक्सिलरी बर्ड रहता वो ऐसा टेंड्रिल में मॉडिफाई होता. एंड terminal bud is modified into a tendril. Terminal bud is modified into a tendril in grapevines. Okay, grapevines में जो terminal bud रहता वो ऐसा spirally modify होता. Okay, और अपना second type है thorns. Okay, thorns is nothing but the buds of the stem which modify into woody straight and pointed structure. यहाँ पे जो आप देख रहे woody straight and pointed structure are called thorns. Okay, few plants क्या करते हैं, अपने आप को ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करते हैं, अपने ऊपर कांटों के जैसे एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं. ओके, ग्रेजिंग एनिमल से डिफेंस के लिए. एग्जाम्पल बोगेनविला एंड सिट्रस. And next, third one is phylloklates. What is phylloklates? In some xerophytes means ऐसे plants जो पानी की कमी में भी, यानी कि डिजर्ट एरियाज में भी ग्रो होते हैं, उसको जीरोफाइट्स बोलते हैं. ओके, द लीव्स आर मॉडिफाइड टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. सो उसके लीव्स क्या होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, बिकॉज उसको क्या करना है, पानी की कमी है ना उसको, तो उसको क्या करना है,
ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करना है उसको। ओके, ट्रांसपिरेशन क्या है? प्लांट की सरफेस से और लीफ की सरफेस से जो भी वाटर पास आउट होता उसको प्रिवेंट करना है। ओके, तो वहाँ पे क्या होता, उसका जो स्टेम है ग्रीन और फ्लैट हो जाता। क्यों होता ग्रीन और फ्लैट? बिकॉज वहाँ पे लीव्स क्या हुए, मॉडिफाई हो गए। ओके, वहाँ पे अपने को जीरोफाइटिक प्लांट्स है, तो अपने को ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करना है, तो वहाँ पे स्टेम क्या होते, खुद को मॉडिफाई कर लेते, फ्लैट हो जाते और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते। ओके, एग्जाम्पल ओपोन्शिया, एलोवेरा एंड कैक्टस। एंड नेक्स्ट वन इज bulbils. Okay, what is bulbils? Some plants detach from the parent plant. Okay, थोड़े plants क्या करते हैं, अपने parent plant से detach हो जाते हैं। Okay, and develop adventitious root, यानी कि small buds to store food. As you can see in this picture, यहाँ पे क्या कर रहा है, small जो birds है अपने parent से detach हो गया और खुद का adventitious root grow करके जो भी फूड है अपने अंदर स्टोर कर रहा। ओके, सच बर्ड्स आर कॉल्ड बल्बिल्स। दिस हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, ये किस में हेल्प करता, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता। एग्जाम्पल फ्लोरल बर्ड्स, अगेव वेजिटेटिव बर्ड्स, डायस्कोरिया। ओके, एंड थर्ड टाइप ऑफ stem modification is subaerial stem modification. Okay, subaerial stem modification. here are the Here the stems are partly aerial and partly underground. They help in vegetative propagation. What is vegetative propagation? Vegetative propagation is nothing but growing a new plant from a leaf, stem. Okay, यानी कि स्टेम या लीफ से एक न्यू प्लांट ग्रो होना, उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ओके, दे आर ऑफ फोर टाइप्स। फर्स्ट वन इज रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सक्कर। Okay, so first type is runner. Okay, in some plants, subaerial stem. Subaerials means ये ग्राउंड है, तो स्टेम एरियल भी है और ग्राउंड में भी है, तो इसको हम बोलेंगे सब एरियल स्टेम। ओके, इन सम प्लांट सब एरियल स्टेम spread to new niches and form new plant when older parts die. So it is basically जब older part डाई होता कोई प्लांट का, तो उसका जो सब एरियल स्टेम रहता, सो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको सब एरियल स्टेम, वो सब एरियल स्टेम क्या होता, स्प्रेड टू न्यू नीचेस। ओके, एक न्यू प्लेस पे जाता और वहाँ पे क्या करता, एक न्यू प्लांट ग्रो करता। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरे न्यू नीचेस में गए और न्यू प्लांट्स ग्रो कर। ओके, such plants are called runners. Example strawberry and oxalis. Okay, next type is stolon. Okay, what is stolon? In some plants a cylinder lateral branch grow aerially. Okay, फ्यू प्लांट्स में एक स्लेंडर लैटरल ब्रांच ग्रो करता। ओके, आफ्टर सम टाइम इट आर्क्स डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड एंड प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट। आफ्टर सम टाइम वो क्या होता, नीचे आता और एक एडवेंटिशियस रूट ग्रो करता। ओके, सच ब्रांचेस आर कॉल्ड स्टोलन। ओके, रनर्स में क्या होता, जब ओल्ड प्लांट डाई होता तब न्यू प्लांट ग्रो होता, बट इन स्टोलन ओल्ड प्लांट भी वैसे ही रहता, बट न्यू प्लांट अपना एक रूट भी डेवलप कर लेता और प्लांट भी ग्रो होता। सो इसको हम बोलते स्टोलन। व्हेन डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट दे लीड इंडिपेंडेंट लाइफ। तो जब ये अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाता, कट हो जाता, तो ये क्या होता, एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करता। ओके, एग्जाम्पल जैस्मिन, नेरियम, मिंट प्लांट। Okay, the third one is opposite. Okay, what is opposite? One internode length of a lateral branch of aquatic plant is called opposite. Okay, aquatic plants में जो branch रहता उसमें सिर्फ एक ही इंटरनोड जो रहता, इंटरनोड मीन्स दो स्टेम्स के बीच में से जो नोड ग्रो होता उसको इंटरनोड बोलते। सो जो एक ही इंटरनोड रहता उसको हम बोलते ऑफसेट। ओके, इट बियर्स ए रॉसेट ऑफ लीव्स। ओके, रॉसेट मीन्स एक क्लस्टर, एक बंच, एक गुच्छा। इट बियर्स ए रॉसेट ऑफ लीव्स। ओके, ये क्या कैरी करता, लीव्स का क्लस्टर ऑफ लीव्स कैरी करता एट ईच नोड एंड टप्स ऑफ बैलेंसिंग रूट्स। एग्जाम्पल पिस्टिया एंड आइकॉन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और नोट्स के लिए कमेंट करिए नोट्स, ओके। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।